at about 8 o'clock in the morning, and it is April 10th, 2012. I introduce myself. I am a researcher on zeros, and cross zeros. So, I submit scientific proof. Scientific means 5 science. True life mathematics of means scientific proof of religion, of God's voice philosophy. I submit scientific proof of bar that delivers induction science, Q science high, H meta science MI, truth, theology, peace science. I put simple question. It's a small question, but it can be answered only by specialists. Specialists in epistemology. An epistemologist can answer you, anybody, and meta science disciplines. Person of meta science discipline can answer, not the rest of the subject people, the learned, educated. My question is man human? Have you ever seen human? Is man human? No. Both are entirely different. Man is not human. Man is social animal. Man is social, cheating low life of selfish desires, personality. That is animal, the animal nature. Person P, the man with hue science high is human. Person P of hue science high is 5. Now, it is surprising to see the politicians and the officers with the wrong concepts about religion, dharma, and politics, political science. Are these both separate? I'm sorry, they are not separate, they are single entity. If you don't understand dharma, religion, you speak out. Political science is different thing. In reality, both are the same. And one thing I observed in my life is the people issuing a character certificate. What is character certificate? Only very few can understand this, but everybody issues a character certificate. That's the pity of this nation. History of democracy, economics. That is the character certificate. For example, character certificate from not less than class 1 magistrate. What does that mean? Meaning is, the person with the character certificate
is with no pending cases of money minting behavior in the law courts. It is nothing to do with sex scandals or sex life or sex behavior or sex discussions. Character certificate, history of democracy. Democracy means it is not counting of votes. C, sen sign C of de-mockery. No monkey business. No monkey business in true money management. Hugh Sign story. High signs. High. High story. High story is history. Hugh Sign story. Hugh Signs means no cheating money management. Science, high, story, history. Thus, history is not of so and so king, son of so and so, son of so and so, somebody did this. It's not the thing. How the kings managed the money. That's the real story of money management, is the history. A history of de-mockery, no monkey business, no cheating business. It is history of democracy, that is economics. Economics, accounts management, no cheating accounts management. Echo, no. NO, it's not NO actually, it is KNOW, no. No science, Hugh Science high is no science. Money management science. The third one is peace science. What is peace? Dayavant, Dan, Bhagavant, Dayavant, kind heart. What's this kind heart? Helping the helpless is only the word promise. Word means only the helping the helpless, and it is a promise. Fulfilling the promise, fulfilling the promise is the best thing, best policy. Helping the helpless is dhan. Helping the helpless is the dhan, is the kind heart, it is the kind mind that delivers, and it is the law of logic, truth, कानून, एंड यही राजनीति है, यही पॉलिटिकल साइंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, नो चीटिंग मनी मैनेजमेंट साइंस, no cheating love life of unselfish desires, personality science. And then in history, शांति ना जाना सो निकला गौतम घर से. शांति ना जाना तो निकला घर से गौतम. सिद्धि प्राप्त की, सिद्धि अर्ध सिद्धार्थ, ना कि शांति. I am talking religion. I am not talking Hindu or Christian or Buddha or anything. When the point comes, what is religion? I am defining the religion. Peace, economics is the peace science. No cheating, money management, accounts management.
is the peace science. Peace science, and it is the economics. By Godfather, by Father, the Son of God, Father, and the senior person is Godfather. They implement policy of peace science, human peaceful life science, thereby eliminating tensions, worries in male or female, in man and woman. The people live on earth with no tension, tension-free life, of no disputes, no quarrels. That is peaceful human life. I speak some important thing in Hindi because here the people don't understand English, and that too in northern India, where I am living in Raebareli, they are unaware of Bible or any other religious books. And if I talk about Bible and if I quote something from Bible, these people may revolt. So I submit some of the points from Ramayana. The language is different, but the meaning is same. Whether it is Quran, whether it is Ramayana, whether it is Bible, the meaning is same. So, for the convenience of the general masses, I submit Ramcharita Manas, राम चरित्र वाले को मनुष्य जाति कहते हैं. राम, no cheating love life of unselfish desires, personality science it is STEM life science, and the person of STEM life science is 5 human. राम चरित्र, चरित मानस, राम चरित्र मानव जाति, ये कहा गया, ये कहा है तुलसी जी ने. मतलब उनने बंदर जाति को, राक्षस जाति को, मानव जाति को तुलनात्मक रूप से रामायण में प्रस्तुत किया. बंदर जाति किसे कहते हैं? बंदर जाति समझने के लिए यहाँ रायबरेली में एक अद्भुत पर्सनालिटी है. श्याम साधु जी नाम का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मैंने खोज निकाली है. सिर्फ यही सज्जन बंदर भोज का नाम पर क्या दर्शाते हैं, जरा गौर करें. बंदर जाति लक्षण, बंदर जाति हजारों संख्या में बंदरों होते हैं. उसमें कितनी प्रकार की जातियां अंदर कलह हैं और कैसे जीते हैं ये समाज, ये बखूबी समझते हैं वे और समझाते हैं. और वो बिना समझे कभी कोई राजनीतिक सफल नहीं हो सकते. बंदर समाज को समझना जरूरी है. शक्ल सूरत से सब एक से लगते हैं,
लेकिन इसमें जातियां हैं, जाति मत ये सब जो है ये बंदरों के लक्षण है। आप साफ नज़र आएंगे, एक बार बंदर भोज में आके देख लें, ध्यान दें, आप खुद समझ जाएंगे ये जाति प्रथा मत ये सब कहाँ से आया। आपके मन की शंका दूर हो जाएगी। बंदर भोज एक बार करके देख लें, कायदे से आप एक बार में समझ सके या 2 बार में 3 बार में समझ सके तो आपके आंखें खुल जाएंगी। बंदर जाति, रामायण में बंदर जाति उनको कहा गया है वाली सुग्रीव। वाली सुग्रीव, चेहरा बंदर सरी का, दुम लगा हुआ है, लेकिन उनकी औरतें तो मामूली ड्रेस में रहते हैं, साड़ियों में रहते हैं। कवि का कल्पना इनको बंदर कहने का तरीका है वो। और अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए, स्ट्रॉन्ग सेल्फिश डिज़ायर्स फुलफिलमेंट के लिए एक दूसरे को कैसी पटकते हैं, राजपाट हथियाते हैं, यह बंदर जाति का लक्षण दर्शाया गया। देन दूसरी तरफ रावण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, मेघनाथ, यह राक्षस जाति, यह विभीषण, यह राक्षस जाति भाई भाइयों में कैसे कलह होता है और कैसे निपटाते हैं, यह राक्षस जाति का लक्षण दर्शाया है। और तीसरी तरफ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम तो क्यू साइंस हाई है, स्टेम लाइफ साइंस है। लक्ष्मण मेटा साइंस डिसिप्लिन है, पर्सन ऑफ यू साइंस फाई है। फाई का काम क्या होता है? शत्रुघ्न, जिसने प्रॉपर्टी मैटर्स में, मनी मैटर्स में लंगड़ी मारी या धोखेबाजी की, चीटिंग मनी मैनेजमेंट साइंस अपनाया, उनको भरत, चप्पल राज, चप्पल से खोपड़ी गंजा करे, मुंह काला करे, गधे पर बिठा घुमावे, उसके बाद सिल्लर जेल में मरने तक छोड़ दे, उसकी तरफ कभी कोई दया ना करे, उसको दया नहीं कहते। दया का मतलब ही नहीं समझते हैं आप। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है। कौन दया के पात्र है, दया का पात्र नहीं है, ये समझना जरूरी है। जो दया का पात्र नहीं है उसको दया दिखाना ये मूर्खता है, परम मूर्खता है। इस तरह से राम शब्द का राज्य चलता है तो कभी भी भ्रष्ट समाज का सृजन नहीं होता, यह दर्शाया गया है रामायण में। और वाल्मीकि जी ये भी लिखा है, ये भी मान लो यह राम नहीं है तो उसका उल्टा रावण होता है। धोबी, मलिन मन, कुतर्क, कुबुद्धि, कुमति जात होती है। विकारी, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या से ग्रस्त विकारी मन राक्षस गण, यही राक्षस गण होते हैं। यह राक्षस समाज घर घर में लड़ाई, यह घर 1000 टुकड़े हो जाता है, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो जाती है, टुकड़े टुकड़ों में बट जाती है। यही महाभारत। और उसमें कोई नियम नहीं रह जाती, क्योंकि परम भ्रष्ट 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 को भ्रष्टता से ख़त्म करने का कभी अंत नहीं होता। ये दोनों लड़के लड़ लड़ के भाई भाई का संतान लड़ लड़ के आखिरी में ख़त्म हो जाते हैं।
परिणाम उनने दर्शाया। जब रामायण ना समझ उसको हटा देते हैं तो महाभारत शुरू होती है, महाभारत अंत करता है। ये ट्रू लाइफ साइंस है रामायण, चीटिंग लाइफ साइंस मैनेजमेंट इज महाभारत। ट्रू लाइफ साइंस को कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। पटरी से उतर जाती है कानून तो भ्रष्टता शुरू होती है, तो महाभारत से अंत होता है, ब्लड शेडिंग होता है, वार्स होते हैं। धर्म, रिलीजियन, सत्य ज्ञान कर्म, यही पूजा होता है। सत्य ज्ञान कर्म पूजा होता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, माने अपनी दायरा कभी पार नहीं करता। पुरुषार्थ, पौरुष अर्थ, पौरुष मीन्स ज्ञान, पौरुष अर्थ पुरुषार्थ। धर्म का अर्थ निष्काम निष्कपट कर्मों से मुक्त जीवन, शांति जीवन, मोक्ष प्राप्ति होती है। इतने ही धर्म, यही कानून है, यही लॉ है, यही न्याय है। यही पूजा होता है। धर्म, दान, धर्म, दान, हेल्पिंग द हेल्पलेस, उसी को दान कहते हैं। हर किसी को हेल्प करना यह दान नहीं। इकोनॉमिकल कंडीशन देश का डगमगा जाएगा। हेल्पिंग द हेल्पलेस इज ओनली दान। दया माने दया करो, बी काइंड, मीन्स you implement law of logic. Always implement law of logic, न्याय और राजनीति, policy making, politics, policy, it should be implemented of no cheating life science, not by cheating people. No cheating people are required. Means human are required. No cheating personality person is human. Cheats are devils. Shameless. Animal doesn't have shame. No sense of shame. No civic sense. In the same way, devils, they too don't have civic sense. But they are very rich, misers, selfish, strong, selfish, desired people, devils, devilish desires. For selfish, egoistic life, they live, they make everything. They are the strong cheats. They are of Pir science, pi r square, circumference science, 22/7. Cheating mind, cheats are produced by pyramids. No cheating science, Phi-mid. It is produced by Phi-mid, not by pyramid. No cheating mind, no cheating mental life science, no cheating low life of unselfish desires personality person is produced by Phi-mid but not by pyramid.
सत्य ज्ञान कर्म पूजा, सत्य ज्ञान कर्म पूजा है। सत्य ज्ञान कर्म त्रिकर्ण शुद्धि, ब्राह्मण्यत्व, ब्राह्मण्यत्व त्रिकर्ण शुद्धि, निष्कपट निष्काम कर्म, निष्कपट निष्काम कर्म, निष्कपट कर्म, no cheating. Then only it is Trikarna Shuddhi, then only it is Brahmanyata. Dharma means not only making only lectures and lectures and lectures. धर्म के नाम पर धर्म गुरु सिर्फ भाषण ही देता रहता है, कर्म कभी करते ही नहीं कुछ। सत्य ज्ञान कर्म कहा गया है। मानसिक वाचक कायक कर्म तीनों में अंतर नहीं है, तब पता लगता है कपट। तीनों में अंतर है तो कपट माने धोखेबाज, माने चीट। धोखेबाज को पकड़ने की तरीका है। जब तीनों कर्म होंगे तो कपट पता लगता है। तीनों कर्म है ही नहीं। बहुत उच्च विचार है, बहुत अच्छे बोलते हैं, कर्म कुछ नहीं करते, वो किस काम के? कर्म जरूरी है, वो भी सत्कर्म। सत्कर्म अर्पण आराधना होता है, कुकर्म अर्पण नहीं, कुकर्म नहीं। कुकर्म को पूजा नहीं कहते। सत्कर्म अर्पण पूजा है, आराधना है। अर्पण आराधना, विग्रह बनकर अटल, कभी नो शेकी बिहेवियर, पर्सन इज अटल। आराधना अटल से करते हैं तो विग्रह बनकर आराधना, विग्रह आराधना, विग्रह बनकर आराधना, पूजा अर्पण, सत्य कर्म अर्पण, विग्रह आराधना, नग्न सेवा, दैट इज ट्रांसपेरेंट लाइफ सर्विस, लाइफ सेवा। नग्न सेवा जीवन, दैट इज स्वतंत्र, दैट इज स्वतंत्र। मर्यादा, पुरुषार्थ, विग्रह आराधना, इनका कुल मिला के मीनिंग ट्रांसपेरेंट लाइफ, ट्रांसपेरेंट सर्विस, नग्न सेवा जीवन, स्वतंत्र। ये ही स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र शब्द है। नग्न सेवा जीवन, नंगा रहना नहीं, नंगा रहना अधोगति। पूर्ण वस्त्र धारण प्रगति चिन्ह। And next time I submit the scientific proof, the life mathematics of religion of God's voice philosophy of Barr, delivering induction science, Q science A, H meta science, MI, truth, theology, the peace science. Thank you. गुरुजी, हेलो गुरुजी, हो गया, खत्म हो गया।
इसको मैं वीडियो में देखना चाहता हूँ, इसमें देखना चाहता हूँ। नहीं, इसमें अभी इसमें टीवी में अभी लगाने में हमको दिक्कत आएगी। नहीं, शाम को या कल। एक मिनट। In the end, I speak the last one, but it is very, very, very important one. The human is assassinated by devil. Always the human is assassinated by devil. When there is no law of logic, or when law of logic is not implemented, when law of logic is not implemented, the human are assassinated by devils. Law of magic, of myth mythology, is the devil's kingdom, devil's ruling. If Indian courts implement law of logic, human can be saved. Otherwise, everybody is around here. They kill mercilessly, brutally all the human. Human are the victims in this society. Thank you. आप अभी यहाँ आज कौन तारीख है महाराज? 10 तारीख है ना? 10/4/2012। आज 10 अप्रैल 2012 है। मन्हेरू के हमारे जो हैं अभय सिंह साहब इधर खड़े हैं और सामने गले में अंगूठा डाले हमारे त्रिपाठी जी हैं। नाम क्या है? अरविंद त्रिपाठी जी आए हुए हैं, गन्ने का रस लेके आए हैं और हमारे लिए तो इन लोगों का बड़प्पन और महानता जो है वो सामने नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ जो गधा एडमिट है जिसकी सेवा मैं कर रहा हूँ आज महीनों से, तो मैं उनको वही दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। आप लोग जल्दी में हैं, अब आप लोग आगे चलें। उनको मैं दिखाऊंगा कि ये आप दुनिया के बड़े से बड़े जो दार्शनिक हैं या बड़े से बड़े विद्वान संत, आप उनसे पूछें कि ये सेवा नहीं, ये महासेवा है। ये अब आप इसका देख रहे हैं, ये ट्रेन के नीचे आ गई थी, इसके यहाँ चोट, यहाँ बड़ा भयंकर जख्म। आज ये 15 से एक पैर में लकवा मार गया है पिछले में। अब इनको देखिए सामने वहाँ गधा वार्ड लिखा हुआ है ना? कि इस वार्ड इसलिए गधों का बनाए हैं कि मक्खी इनमें न बैठने पावे, इसलिए अंधेरे में वहाँ ये अब इनको खुले में अभी बाहर खड़ी है। अब इनको इसी तरह दवा ला रहे हैं, दवा दे रहे हैं, खाना पीना, और ऐसे सैकड़ों गधे 165 या 66 नंबर का गधा है ये। 165 इसका इलाज हो रहा है। और ये कब्रिस्तान में आप खड़े हैं, जानवरों का कब्रिस्तान है यहाँ पर। यहाँ देखिए अभी ताज़ा तरीन बंदर की समाधि बनी है जहाँ वो ठूंठ ऐसा निकला है। जहाँ ये पाइप देख रहे हैं यहाँ पर अजगर गड़ा है, बहुत मोटा अजगर था। तो ये महासेवा है। रायबरेली में जिला जेल के जिला सुपरिटेंडेंट R.K. मिश्रा, उन्होंने कहा, बड़ा विद्वान आदमी था, देखिए यही लोग ICS PCS में बैठते हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे जानवरों की सेवा जो है ना, ये सेवा की पराकाष्ठा है। ये शंकराचार्य को भी नसीब नहीं होगा। वो श्याम साधु से भगवान करवा रहे हैं। और दुनिया के जो छोट भैया हैं उनके निगाह में हम पागल तो है ही हैं। तो इसलिए ऐसा है कि जो महान कार्य करे वो ये विद्वानों का कथन है कि ये महासेवा है। तो अचानक आप लोगों का आना हुआ, आपने उस गधे की और एक दरवाजे कुत्ता भी पड़ा हुआ है, वो आज 24 दिसंबर से है। तो इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है और इनकी सेवा महासेवा है। और सूअर की सेवा सुपर सेवा है। यहाँ घायल सूअर भी हम उठा के लाए तो हमारी सारे ज़िंदगी इसी में बिता दिया। अगर हनुमान जी की भक्ति के कारण ही तो मैं बंदर भोज कर रहा हूँ भाई। तब एक 6200 भक्ति है और नहीं माला जब के बैठ जाओ, क्या है फायदा? कोई फायदा नहीं। जबकि आचार्य जी ने कहा कि साहब वो माला जपने से हाँ क्या होता है, हम कहा मन जब तक शुद्ध न हो त्रिपाठी जी, माला चाहे जितना जपो
कहीं आचार्य जी आपके पिताजी के सामने आए रहे, कहीं वेब से निकलता है, हम कहा कुछ नहीं निकलत, ये सब मन के समझाने की बात है। सही है, सही हैं? अयोध्या में कितना आदेश, हाँ, बढ़िया हाँ, आदेश। अब आगे की बात अयोध्या के बारे में बताइएगा, याद दिलाइएगा तो बताएंगे। इंडिया टुडे में निकला है महाराज, ठीक ठीक। अयोध्या के बारे में इंडिया टुडे में निकला है, तो हम अबे तो बतेबे। तो भैया अभय जी, आप केवल जब भी हो एक बात चाह रहे हैं, बैठक होए भाई। अरे बिल्कुल हुई। हैं तो आप आदेश कर रहे हैं, एक डोरी छूटी जा रही है। बिल्कुल। अरे है अच्छा ये बांध दो हमने। नहीं, हाँ वही क्या, बांध दो 1 मिनट लगी, एक का बांध दो महाराज, हाथ खाली रखो, मोटरसाइकिल आए ये भाई सब। खाली कर ले, हाँ तो बहन खाली कर ले। अच्छा अच्छा, तो अब जेठ के मंगल का जब आरती शुरू हुई महाराज, हाँ, हाँ, हाँ। बहन बताए थे ठीक, हर मंगल आरती शुरू हुई। अच्छा अच्छा हम आपका एक लड़का उपलब्ध करा दे, आपको गाड़ी डेली शाम को आना है आप। अच्छा अच्छा। बढ़िया सुबह आप महंत सिया रामदास को है न्यूज चली गई बस। अब एक काम, हाँ वो न्यूज जाएगी, नंबर 1 नंबर 2 महंत सिया रामदास नहीं, लेकिन नंबर 2 मतलब नंबर 1 को महंत सिया रामदास, नंबर 2 पर आप है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जो नंबर- बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए साहब, बिल्कुल यही होना चाहिए, यही नियम है तब। और रात दिन बेचारा माँ फिर हाँ, सही। एक बात बताओ, और ब्रह्मचर्य का पालन भी तो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है भाई। हाँ, हनुमान की पहली भक्ति है ब्रह्मचर्य का पालन। क्या तो सियाराम हमसे आ गया है महाराज। सही है, सही फिर न्याय की बात करेंगे तो जेठ के सम्मान। 4-5 मंगल चलिए उसी हाँ, में आराम लेकिन से। एक बात है कि किसी मंगल में हम बाहर भी जाना पड़ता है ना, हम्म। बंदर भोज करने, बंदर का नहीं शाम को, शाम टाइम में, शाम टाइम में हाँ 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 आपका 9-10 बजे तक छुड़वा देंगे। हाँ, 3 बात बजे बात तक बात के तक बात 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 आराम से 5-6 बजे तक आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद उस्ताद पा के आरती करा के, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अभी क्या आप हम अपन तैयारी रखब। अरे बिल्कुल महाराज, अब आप हम कहे थे कि आपका हम वो पावर दे रहे हैं कि हनुमान जी का पावर ज़्यादा मिला, राम से भी ज़्यादा। अरे तो आपको पावर दे रहे हैं कि पिताजी से एक बार चाहे हंसी मजाक में देखो, कहो पिताजी एक बार कहिबे तो श्याम साधु साइकिल से ही हैं। नहीं नहीं हो सकता, वो जानत वो हमसे कहा कि अगर जावा करो रायबरेली उनके बचन, हाँ हाँ, तो समय लगा के नहीं नहीं आपका कहा थे कि उनके जाके केवल पैर छू लिया करो, उसके बाद चले आए। नहीं, ये उन्होंने अरे कहा। वो बहुत ज्ञानी आदमी है साहब। हाँ तो कहीं देखने में ये सब ढकोसले लगते हाँ, हैं, वो आदमी जो है वही महंत सिया रामदास, जी, जी। ये भी वो भी कहें जी। कि ये लोग असली संचालक हैं। सही, ठीक, अच्छा, जय हो। वो तो नहीं बोल रहा। आज 10 अप्रैल 2012 है। यहाँ ओम शिव शक्ति सेवागार की ओर से आज कार्यक्रम इन लोगों का चल रहा है। आज तीसरा दिन है। यहाँ रुद्राभिषेक हुआ है और बस स्टेशन चौराहे पर काफ़ी लोग आए हुए थे, हम लोग भी आए थे दिन में, और बहुत बड़ा भंडारा, विशाल भंडारा चल रहा है। लाखों आदमियों ने अब तक यहाँ से प्रसाद दिया होगा। और यहाँ हमें रोका गया है, बंदरों के लिए सामान हमको सुधीर नंदवानी है, सामने राम कुमार बिछामन है, जगदीश चैनानी जी हैं, सिंधु समाज के सब खंभे हैं, स्तंभ हैं। सुखो बाबू भी आए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ये चीज़ें सुधीर नंदवानी बंदरों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन इस रायबरेली में हमारे ख्याल से इससे बड़ा आयोजन अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। ये ओम शिव शक्ति सेवादार, जिसके राजेंद्र अवस्थी जी अध्यक्ष हैं, चैनानी जी हैं, बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं। और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा काज इसमें गुप्ता जी पूड़ी वाले का मेन से ये भैया खड़े हैं। अच्छा ये अच्छा बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप हमका देखे हो हाँ, हाँ, हाँ। तो हम इनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं थे। ये इतने बड़े भगत आदमी अच्छा। है, इनकी सेवा का कोई जोड़ नहीं मिलती। अच्छा, साल में हम 1 बार 2 बार मिलते हैं इनसे, एक बार यहाँ मिलते हैं, एक बार सुपरमार्केट में सेवा करते हैं। हाँ, हाँ। बाकी तो हमारी मुलाकात इनसे नहीं होती है। अच्छा, लेकिन इनका कोई जोड़ नहीं है। ऐसे आदमी चिराग लिए ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, ये पीठ पीछे इनकी तारीफ है, मतलब चिराग लेके हम ढूंढे भी इनको नहीं मिलेंगे। अरे वाह,
बहुत बड़ी बात है, बंदर के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है ये। ये सब सुधीर नंदवानी बंदरों के लिए पूरी की व्यवस्था कर रहे हैं, बूंदी बोरी में डलवाए हैं। और ये समझ से बाहर की बात है, लाखों आदमी अब तक प्रसाद पा चुके हैं। देखो हाँ हाँ, हो गया, बड़े आराम से हो जाएगा, बेटा ना पर्याप्त हो जाएगा। इसमें 2 दिन हमारा चलेगा बंदर के लिए। ये है भैया, बांधो जी। ये तोड़ रखा है। हो गया मनीष। अब हम यहीं आगे के रुकेंगे आप? नहीं, अब 10-5 मिनट आपके बीच में रुकेंगे। आप लोगों का खून पसीना। अब ये काम फिट है आपका, ये व्यवस्था हाँ, रखिए। व्यवस्था हो गया। अब आप इससे छुट्टी पा गए। आप प्रसाद तो खाओ थोड़ा सा। खा लिया हमने। हाँ खा लिया। अरे खाए हैं भैया, झूठे बोल रहे हो। नहीं, सुखू बाबू के साथ खाए हैं बैठ के। खाए है ना? हाँ, सुखू बाबू के अभी साथ। आपका फिट है मामला। हाँ भैया, ओके। इसमें 2 बूंदी की झिल्ली भरवा जी, दिया, जी, चाहे जी, किसी जी। को देनी भी हो तो हाँ, दे हाँ, दीजिएगा। हाँ, दे देंगे। पूरी 4 बंदरों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों काम हो जाए। बहुत। अरे हमारा पूरा काम बन गया। ठीक। बढ़िया मात्रा में डाल दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, ठीक। 2-2 किलो एक झिल्ली नहीं में नहीं, डाल हाँ, दिया ये मात्रा में बढ़िया में। इसमें देखिए तमाम जो हाँ, हाँ। अखबार वाले हैं उनको भी देना है, बंदर को भी देना, हमारा काम हो जाएगा। सामने भी कहो। इस फाइल को समाप्त किया जा रहा है। बाहर बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। सारा दिन हज़ारों लाखों लोगों ने अब तक प्रसाद पाया होगा। बाहर का बस स्टेशन चौराहे पर आप ये सीन देख रहे हैं, तिलक भवन के पीछे यहाँ भोज चल रहा है। बाबा का माल है। पीली पीली झोली में। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है। इसको अजूबा कहा जाएगा। थोड़े से लोग इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज 12 अप्रैल 2012 है। 12 अप्रैल 2012 है। सुबह के टाइम इस समय हम यहाँ, आओ भाई आओ। अब सामने आप देख रहे हैं, ये गधा भी, उधर बछिया चिल्ला रही, इधर ये जानवर मौजूद, घर के जानवर हैं, उधर गाय खड़ी। चलो चलो उधर। तो जहाँ सुबह आँख खुली कि इनको चारा पानी, इनका इलाज, सब कुछ तो करना है। अभी गधा खड़ा है। मैं आज नवरात्र में आया हुआ था, उसके पहले गधा आया, इलाज कराया। अभी इन गधे जो गधों की मानसिकता वाले हैं, जो सिर्फ जो भेड़ को, मतलब भीड़ को देख करके प्रभावित होते हैं। भीड़, अब मूर्खों को नहीं मालूम। अभी कोई महात्मा रंगीन कपड़े में आ जाए, भीड़ लग जाए, बस देखिए आप, अब देखा देखी लोग उस महात्मा के पीछे चढ़ौका चढ़ाने लगेंगे, शुरू कर देंगे। ये नहीं कोई जानना चाहता है कि ये महात्मा के अंदर क्या खूबी है, क्या इसके अंदर चमत्कार है। अब जैसे हरिश्चंद्र दरोगा जी जो हैं यहाँ गदागंज में रह चुके हैं, जो एसपी से जिनका झगड़ा हुआ, सस्पेंड हुए, फिर वो सीतापुर में बहाल हो गए, वो कल आए हुए थे। और पीजीआई में जिस मरीज़ का ऑपरेशन होने जा रहा था, उसको उन्होंने रुकवा करके वो ठीक किया। ना कोई दवा, ना दरबट, केवल उनके हाथ में एक अद्भुत शक्ति है कि वही उसको मतलब हाथ लगाते हैं, दर्द गायब होता है। कौन आदमी कहाँ बैठा हुआ है, बहुत बड़े अच्छी उनको सिद्धि प्राप्त है। लेकिन जब चूँकि आज वो कपड़े पहन के बैठ जाएं,
बाबा बन के तब शायद भीड़ लगे, वरना इसे लोग जानते हैं दरोगा जी हैं। अभी गधे की आप कंडीशन देख रहे हैं न, इस पैर में इसके लकवा मार गया है, वो रीढ़ में चोट की वजह से इसका पैर काम नहीं करता है। पेशाब की जगह इसका एकदम सड़ा हुआ है। इलाज कर रहे हैं। अब अभी फिनाइल निकालेंगे, उसको भी लगाना है। इधर ये बछिया खड़ी है, ये पानी का हौदा है, देखिए कल नहीं पानी भर पाए, देखिए ज़रा सा पानी रह गया इसमें, इसे सफाई करें, इसमें पत्तियां गिर गई हैं। तो एक आदमी कितनी कठिन ड्यूटी, न इसमें है, न तनख्वाह है, न पेंशन है, न कोई छुट्टी है, कहीं कुछ नहीं, रात दिन 24 घंटा सारा जीवन इस काम को करना पड़ता है, किया है। उसका फल प्रतिफल हम सामने जानते हैं, हमको मालूम है कि इसका अंजाम क्या होता है। तो किसी अंजाम और फल के लिए नहीं, ये स्वभावगत, ये नहीं कि हम ये काम करेंगे तो हमारा काम बनेगा। ये स्वभाव है कि अगले को भयानक कष्ट है, कीड़े पड़े हैं, घाव में कीड़े नोच रहे हैं, हमारी निगाह पड़ चुकी है तो हम उसके लिए कुछ करें। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा देवत्व है। लेकिन मेरा ये अंधा, बहुत अंधा समाज, अब हम क्या बताएं, और ख़ास करके हमने देहातों में देखा है कि वहाँ मानवता की और सेवा की बात नहीं करेंगे। हाँ बैठो भैया, चल रहे हैं। मानवता और सेवा की बात नहीं करेंगे वहाँ, ना, वहाँ बात आडंबर की करेंगे। ये फलाने बाबा और कुटिया और ये चढ़ौका और बस हनुमान जी, फलाने हनुमान जी। अरे बाबा, बंदर मर रहे हैं भूखे और तुम हनुमान जी की बात करते हो, हैं? हनुमान मंदिर की बात करते हो। बंदर भूखे मर रहा है, पहले बंदर को खिलाओ जाके, फिर हनुमान का नाम लो। आपका ही बेटा, आपका ही वंशज कहीं भूख से पीड़ित हो, भूखा हो, और हम आपके मक्खन लगावें आपके तस्वीर के सामने, कैसा लगेगा आपको? देखिए गधे कंडीशन आप देख रहे हैं, इसको घूमने में, उठने में, बैठने में कितनी दिक्कत हो रही है। इसका कोई इलाज नहीं। ये रीढ़ ये ट्रेन के नीचे आ गया था, वही गधा है जो 2 साथी इसके मर गए थे उसी में, ट्रेन के उसमें कट करके, और ये बच गई थी। ये गधी है ये। अब रीढ़ के हड्डी में इसको कोई टूट गया कि चोट लगा है, क्या है, और अब ये लकवा ऐसा मार गया है, पिछला पैर रख नहीं पाती है ये। अब इसी तरह इनका जख्म मुखम जरा भर जाए तो इनको हम निकालें। अब 1 महीना, 2 महीना, एक जानवर में कितनी कठिन सेवा है, कितनी कठिन तपस्या है। इस अंधे समाज से हम पूछना चाहते हैं, बड़े बड़े, अब उनका हम क्या नाम लें, क्या नाम भी नहीं आता है। कौन महाराज, श्री कृपालु महाराज की ना मालूम कितने महाराज, कितने शंकराचार्य हैं। ये उनका काम नहीं है, इसके ऊपर उनको बोलना नहीं चाहिए। क्यों? उनमें मानवता नहीं है। वो चाहे कृपालु महाराज हो, चाहे उनके कोई महाराज हो, वो पहले मानवता का पाठ पढ़ें। समझ गए? ये कोई अंधी जनता है, वो हाथ फेर दिया और मुँह घुमा दिया। अरे सीखना है, अद्भुत चमत्कार देखना है तो दरोगा जी में देखो। हरिश्चंद्र वर्मा दरोगा जी आजकल नैमिषारण्य में कहीं पोस्टेड हैं। कोई सरकारी काम होता है, उनको रायवली आना होता है, तो 10-20 मरीज उनकी प्रतीक्षा करते हैं। कल हमारी नातिन जो है उसको वो कहीं उछल कूद में वो मतलब ऊंचे से कूद पड़ी और नाभि उसकी हट गई थी। अब साहब नीलकंठ अस्पताल में उसका उल्टी नहीं बंद हो रहा है, टट्टी नहीं बंद हो रही है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। हजारों रुपए अब तक लग गई इसी 1 हफ्ते के भीतर, हजारों, और लाभ कुछ नहीं। कल यह हुआ कि हमारी बेटी जो है उसको अब क्या होगा भैया, लखनऊ ले चलो। तब तक प्रभु की माया, दे रहे हैं पानी दे रहे हैं भैया, अभी भर रहे हैं। अच्छा उधर से आके हम साफ भी कर दें। देखिए गधा जो है उसको पानी चाहिए, तो आके हौदी के पास ही खड़ा है। हौदी में देख रहे हैं ज़रा सा पानी है, पट्टी पड़ी हुई है। अभी आ रहे हैं, अभी, हाँ अभी आए, अभी रुक जाओ भैया। अच्छा नहीं मानोगे तो पियो। ये देखिए, ये प्यासी है।
पानी कैसा पी रहे हैं, लेकिन पानी अच्छा नहीं है। अभी आ रहे हैं उधर से, हम साफ़ कर रहे हैं। देखें यहाँ, देखा ना आपने, कहीं कोई चिल्ला रहा है लगाने के लिए, कोई कुछ है, कहीं कोई ना कोई, कितनी भयानक बदबू आ रही इसके। फिर वही फिनाइल वगैरह लेके हमको लगाना पड़ेगा। अब हम सेवा भी करें, हम भाषण भी दें, हम जनता को जगह में, इसीलिए यही एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एक नमूना देते हैं अंधे समाज को। करे महाराज, और ये अरे विदेशों में उनके आश्रम चल रहे हैं, रहे तो श्री श्री। और डॉक्टर राव ने उनसे यही सवाल किया कि कहीं आपने मनुष्य देखा है? ये बड़ी हाई थिंकिंग वाला सवाल था। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है, न उसकी मीनिंग समझेगा और न उसके अर्थ को जानेगा। और सवाल किया और रविशंकर जी जो है जवाब नहीं दे पाए। अब मीडिया वाले सब बैठे कि आप क्या कहें हम। उसमें कोई रहा होगा, कोई सिरफिरा टाइप का बेवकूफ़। बहुत से सब मीडिया वाले सभी थोड़े मतलब हाई फाई में होते हैं, एक से एक रंगरूट भी उसमें आ जाते हैं। ले लिया, अरे मीडिया के आदमी हो तो मीडिया के तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को उठाओ, बड़े बड़े क्वेश्चन को जानो समझो, तब आप मीडिया के हैं। इतना बड़ा अखबार, बड़े बड़े अखबार आप लोगों पर जो चलते हैं, उसकी जानकारी भी तो रखो भैया। और वहाँ इनको डॉक्टर राव को डांट दिया, है वकील, वो काला काला कोट पहने। अब उनको ये भी तमीज़ नहीं कि ये वकील है कि ये कौन है। है वकील, चुपचाप बैठो, ये डॉक्टर राव का कहना है। अब आगे जरा हौदी भी साफ करते जाएं, बात करते जाएं। और ये नहीं करे, उनको तो गड़गड़ा के अखबार में छापना था कि 156 देशों के गुरु को डॉक्टर राव ने धराशायी किया। अच्छा छापो, लेकिन नहीं, क्यों नहीं छापा वो खुद नहीं समझ पाए। उन्होंने डॉक्टर राव को पागल ही मान लिया, यही मान लीजिए। कैमरे से मैं एक हाथ से बना रहा हूँ, साफ मैं कर रहा हूँ, बड़ी बदबू आ रही भगवान। जहाँ 2 दिन चूक जाओ तहाँ बदबू चालू। फिर आज पशु चिकित्सालय से आदमी को बुलाएंगे, फिर आज चेक करवाएंगे, देखो भैया कीड़े तो नहीं पड़ गए। बदबू जब आने लगती है तो लगता है कि कीड़े पड़ गए हैं। चलो भाई, अब भर रहे हैं। अच्छा, चलाने जा रहे हैं मोटर, अभी मोटर जोड़ना है। क्या है भैया, चलो वहीं चलो, आ रहे हैं भैया, चलो पीछे पीछे लगी है तुम, वहाँ घूमाओ, चराओ जा करके। इसी गार्डन में हम आगे से गुजर रहे हैं, घूम के आना पड़ता है इतना। इतनी बदबू आने लगती है भगवान। पाइप को जोड़ें, पाइप को जोड़ के मोटर चलावें, तब तो दोनों हाथ हमारे व्यस्त हो जाएंगे। वो आफत मचाए है, बचिया चिल्ला रही है लगाने के वास्ते कि मतलब गाय को लगाया जाए। ठीक है, तो अब हम वाणी को विराम दे रहे हैं। आज की 12 तारीख की फाइल मैं बंद कर रहा हूँ। अभी गधे की दवाई लगाना है, मोटर चला के पानी भरना है, ताकि वो प्यासे भी हैं। तो अब दोनों हाथ हमारे उसी में लग जाएंगे। हम वाणी को विराम देते हुए आज की ये 12 अप्रैल 2012 की पहली फाइल समाप्त हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अभी आज 12 अप्रैल 2012 की दूसरी फाइल मैं बनाने जा रहा हूँ। अचानक रोटरी सेवा सदन के शिव प्रसाद नाम है ना? हाँ, शिव प्रसाद जी आए, तो उनको मैंने दिखाया। हमने कहा कि हम कभी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, कोई लाभ नहीं लेते हैं, और हमको ये चाहिए कि जो बड़े धनी मनी लोग हैं वो हमारा जो शुल्क जमा होता है उनको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए जो सेवा करते हैं कि मैं सेवा नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि चाहे जितने बड़े वो शंकराचार्य हों, चाहे कृपालु जी हों, और चाहे श्री श्री रविशंकर जी क्यों ना हो, वो पहले हमें हमारे सवालों को जवाब दें।
आप अचानक आ गए हैं शिव प्रसाद जी, आइए यहाँ आके जाके देखिए, अभी अभी ताज़ा पानी भरा है। 1 महीने से गधा मेरे यहाँ एडमिट है, 1 महीने से एडमिट है। पिछला लकवा मार गया है, पेशाब की जगह सड़ी हुई है। कई बार कंपाउंडर को बुलाए, दवा डलवाए, इलाज करवाए, महीनों से मैं झूल रहा हूँ। इसके पहले गधा आया, उसका पैर खराब था। उसके पहले एक आया, दरवाजे कुत्ता एक अलग आप देखते हैं, काला काला सा पड़ा हुआ है, अभी पड़ा होगा वो भी आप देखिएगा। तो अब हमारा मतलब कि जिस सेवा को आज तक विश्व में किसी ने किया नहीं, इस ढंग से नहीं किया, हमने जीवन पर्यंत सेवा का ही काम किया है। दुर्गा मार्केट आपका ही है, मैंने दुकान नहीं किया। देखिए कैसा बार बार पानी पीता है गधा, अभी ताज़ा पानी भरा है। जितनी सराहना आपकी कीजिए उतना तो अब ये बताइए कि जो शंकराचार्य ने, रविशंकर ने, कृपालु महाराज ने नहीं किया, रायबली के जितने बड़े 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 लोग हैं क्लब में वाले और बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, उन्होंने इस काम को किया, छोड़ो कहा भी नहीं लोगों से कि हम आपको करना चाहिए। इसलिए नहीं कहा कि अगर वो कहेंगे कोई यही सवाल कर बैठे तो हमारा मतलब है डॉक्टर राव हमको मिले। देखिए बार बार इसको अब बड़ा अच्छा ताज़ा पानी एकदम भरा है। आज 2-3 दिन के बाद इसको हम सफाई कर पाए हैं। एक आदमी कहाँ कहाँ तक जाए, बाहर भी देखो, वहाँ भी देखो, रोज बंदर भोज करने जाओ, कभी इलाहाबाद, कभी भंवरेश्वर, कभी ऊंचाहार, एक आदमी हजारों पेड़ पौधा देखिए, सब देख रहे हैं अकेले दम से, ना कोई माली ना कोई नौकर। 4 ठो पेड़ आपके सेवा सदन में लगा है तो न मालूम कितने माली आए होंगे, कितना खर्चा लगा होगा, पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तब वो 4 ठो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे समाज में सेवा का केवल आडंबर नाटक ही शेष रह गया है। तो अचानक आप आए दिन आते रहते हैं निमंत्रण आमंत्रण पत्र लेकर के। तो हमने आपसे यही कहा कि महाराज हम तो कभी आप देखते हैं 1 कप मैं चाय भी नहीं लेता हूँ वहाँ, ना कभी मैं, हमारे पास समय नहीं है, हम रात दिन गाय गधा कुत्ता, और इनकी सेवा जो है ये जेल अधीक्षक, देखिए पैर में भी बार बार वो देखिए पैर में सूजन है ना, मक्खियाँ लग रही हैं, अब उसमें भी दवाई अभी लगानी है, बार बार मक्खी इसको काट रही हैं। ये वहाँ गधा वार्ड बनाए हैं, देख रहे हैं सामने, वो गधा वार्ड लिखा हुआ है। अब इसके ठेल के इनको अंदर करेंगे, करे ससुरे अंदर रहो, नहीं मक्खियाँ जो टट्टी कर देती हैं तो फट से कीड़े पड़ जाते हैं। अब कीड़े पड़ गए तो फिर वो भयंकर मुसीबत, कंपाउंडर को बुलाओ, ड्रेसर को बुलाओ, पैसा लगाओ, पैर पकड़ो, रस्सा लाओ, बहुत बवाल करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये सीढ़ी इसलिए बनती है, कह रहे आंखें खोलो। और डॉक्टर राव ने जब रविशंकर से सवाल किया, श्री से, रायबरेली में कितने भक्त हैं उनके, और जितने रविशंकर के भक्त हैं आपके सेवा सदन से अधिकांश से जुड़े हुए हैं, ठीक। और उसने धराशायी कर दिया रविशंकर को। मालूम क्या पूछा, अखबार वालों ने नहीं छापा। क्यों नहीं छापा? उनको समझ में नहीं बात आई, उनके बाप समझ में नहीं आई कि उसने कितना ऊंचा सवाल किया। डॉक्टर आई सर्जन डॉक्टर राव, कभी किसी दिन लाएंगे उनके, हम यहाँ पर भाषण करवाएंगे, उनको हम बुलाएंगे। अगर आज मीटिंग होगी तो आज हम उनको लेके आएंगे, है ना। आज तो मीटिंग नहीं है, 15 तारीख को। अच्छा 15 को है, तो हमको याद दिलाइएगा एक बार भाई उसको। अब लोगों ने कहा वो तो पागल है। अरे बाबा पागल तो पागल के बाप आप हैं। क्यों? उसने किसी चीज़ का मूल्य, हम कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं तो आप रविशंकर जी को पटकाना दे दो तो हम जाने। उसने रविशंकर जी से यही पूछा कि क्या नाम, कहीं आपने मनुष्य देखा है? देखिए आप कितना बड़ा सवाल था, ये बड़ी हाई थिंकिंग की बात है। इस साधारण आप बात आदमी नहीं बोल पाएगा। आपने कहीं मनुष्य देखा है? तो रविशंकर जी नहीं बोल पाए। मालूम क्या है, मैं भी मनुष्य हूँ और सभी मनुष्य हैं। तो डॉक्टर राव ने मालूम क्या कहा कि श्रीमान जी अगर सभी मनुष्य हैं तो फिर राक्षस कौन है? देखा, उन्हीं की बातों में उन्हीं को पटक दिया। अगर सभी मनुष्य हैं तो फिर राक्षस कौन है? देखिए आप, उन्हीं की बातों से उनको पटका। ये नहीं समझ पाए मीडिया वाले। अब फिर आप जानते हैं कि कुछ क्यों नहीं मीडिया वालों ने छापा इस बात को, कुछ अंदरूनी बात आप जान जाइए, ठीक। अब एक छोटे अखबार वाले आने वाले हैं, है छोटा अखबार लेकिन बहुत बड़ी खबर वो छापता है। लालगंज के आएंगे, उनसे मैं बात करूंगा, इस मुद्दे को उठाएगा कि 156 देशों में जिसके आश्रम चल रहे हों
और रायबली के एक मामूली एक अरे मामूली हम लोग कहेंगे चूँकि रायबली में है वो सीनियर आई सर्जन ने जो सवाल किया वो जवाब नहीं दे पाए। अगर वो कह देते नहीं तब वो बढ़िया जवाब उनको वो मानता कि आप हैं बुद्धिमान, लेकिन आपने कहा है सभी मनुष्य हैं और क्या बोलते हैं मैं भी मनुष्य हूँ। उन्होंने कहा जब सभी मनुष्य हैं तो फिर राक्षस कहाँ है, कौन है? मतलब कि मनुष्य आपको मनुष्य कब कहा जाए? जब आप मनुष्यता से उतार आपके अंदर मनुष्यता पूर्ण व्यवहार हो। तीसरा सवाल करने जा रहे थे, मीडिया वालों ने उनको डांट दिया। नहीं, तीसरा सवाल ये करते कि मनुष्य की कैसे पहचान की जाए। चल रहे हैं आपस ना बचाओ, नंगीन कहीं की। चिल्ला रहे हैं। ये देखिए बार इसको बढ़िया पानी मिला है ना, हर थोड़ी देर में 2-2 4-4 घूंट ये पानी ये अपना पी रही है। अब बताइए महीनों का लफड़ा, पैसा बताइए कहाँ से हम लाते हैं? सोचिए आप, यहाँ रायबली के बड़े बड़े धनी मनी लोगों के नहीं दिखता है, उनके ज्ञान में गोबर भरा है, पत्थर भरा है, भंडारा, टूर, ये खेल और ये तरह तरह के लच्छेदार भाषण। फलाने डॉक्टर ये डॉक्टर, अरे जब इन्हीं कामों को देख के शंकराचार्य के लिए मैं शिव प्रसाद जी चुनौती बना हूँ कि नहीं? बिल्कुल है? सही। शंकराचार्य को करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मानवता क्या है। ये सेवा जानते हैं क्या है? जेल अधीक्षक रायबली में रह चुके हैं। अरे बड़ा विद्वान आदमी था साहब, R.K. मिश्रा, जेल सुपरिटेंडेंट, बड़ा विद्वान आदमी, आजकल शायद फिरोजाबाद में है। ट्रांसफर हो गया ना। उन्होंने ये कहा था, कहन साधु जी आप जो ये क्या नाम जानवरों की सेवा, ऐसे जानवरों की सेवा कर रहे हैं तो इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है कि बहुत बड़ी सेवा है ये। तब एक साहब ने कहा कि मनुष्य की सेवा सेवा है और जानवर की सेवा महासेवा है और सुअर तक की सेवा करना सुपर सेवा है। सुपर सेवा है ना? सुपर हिंदी अंग्रेजी में लाइए तो मैं सुनने में नहीं हंसी भी आती है और इसके माने कितने गहरे हैं। बहुत गहरे। देहाती मानों में अरे रिसर्च होना चाहिए। एक गंवार लोग जो गांव में बोलते हैं कहीं मांगे गई पूत मरिगा भतार, कितनी गहराइयाँ हैं अंगूठा लगाने वाले। इसके ऊपर नहीं तो ये बताए कि ये काम लोगों को, ये धनी मनी लोगों को कभी पूछना चाहिए कि साधु जी एक महान कार्य में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। वो श्याम साधु से नहीं पूछेंगे, वो रविशंकर जी से पूछेंगे कि कितनी मोटी थैली आपको दी जाए। अरे लानत है ऐसी सोच वालों को, धिक्कार है कि श्याम साधु जैसा एक मामूली आदमी एक सवाल करे आप जवाब न दे पावें। डॉक्टर राव ने इसको रविशंकर को धराशायी कर दिया। ये रायबली के लिए बड़े गर्व की बात है। 156 देशों में उनके हैं। तब वो परमात्मा, अरे पहले आत्मा बनो यार, पहले मानवता की बात करो। हैं हम तो एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए, कोठी बंगला आप देख रहे हैं और मेरे काम और आप विचार देख लीजिए। और फिर भी नहीं कह रहा हूं कि आप हमको शंकराचार्य मानो, नहीं, आपको हमारे ही जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। पैसा मत दिखाओ, नो नो नो, आदमी भेजो, दवाई भेजो, पट्टी भेजो, पैसा मत दिखाओ। बहुत पैसा मैंने देखा है, अथाह पैसा देखा है, अथाह संपत्ति देखी है। 3-3 प्रांतों में हमारी करोड़ों की जमीन जायदाद थी। अब तब धीरे धीरे बिकते बिकाते मरो हाथी 1.25 लाख का। और दुर्गा मार्केट की कीमत आप क्या समझते हैं? करोड़ों में है, तो अपना ही तो है। लेकिन सब हमने भाइयों को दिया, दामाद को दिया। हमने कहा नहीं भैया मेरा हिस्सा हमें नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, हमको ज़रूरत होगी तो आप लोग दीजिएगा। तो खैर वो लोग बेचारे अपना जैसे तैसे करते हैं। लेकिन हमारी बेटियां, 2 बेटियां हैं और वही मदद करती हैं, वो स्वयं काम करती हैं और पैसा भी देती हैं। तब तो हमारा मतलब कि एक एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। ये सीढ़ी जब बनेगी हम आपको देंगे और वहाँ सेवा सदन में दिखाइएगा कि आप श्याम साधु के सवालों का जवाब दीजिए कि मानवता से बढ़ करके कौन सी पूजा है, कौन सी मानवता से बढ़कर संसार में क्या है। श्याम साधु के लिए हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, पंडित चमार की भेदभाव श्याम साधु नहीं जानता। अगर मैं ये भेदभाव जानता सरकार तो मैं गाय और गधे और सुअर की सेवा में नहीं लगते। हम बिल्कुल न करते।
ये देखिए बार बार उसी पानी के पास में इसको, अब इसको अंदर करेंगे तो एक बड़ा संजोग हुआ। आप आए, बड़े बड़े लोग आपके यहाँ आते हैं, ये सीढ़ी उनको दिखाइएगा, ये पूछिएगा कि श्याम साधु तो इतने दिन से कर रहा है, जिंदगी बीत गई, बुढ़ापे की ओर आ रहा है, तो क्या रोज आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, ठीक? हाँ, डेली। तो कोई आप गए कभी श्याम साधु की, आपने कोई श्याम साधु का उत्साहवर्धन किया? अरे 4 आदमी आकर के यहाँ मेरा उत्साह ही बढ़ा दिए होते, तो नहीं वहीं बुला के कर दिए होते। तब उत्साह बढ़ाओ। ये क्या नाटक कर रहे हो? लेकिन ये सीढ़ी आज बड़ों बड़ों को पटक रही है। जितना हम आपके आगे बोल गए कि जो भी ये सीढ़ी देखेगा ना, वो अंदर ही अंदर इस तरह झेप जाएगा कि हाल ना पूछिए आप। सच। हमारा काम नहीं कि हम आपको झपावें, नीचा दिखावें, लेकिन हम आपकी आंखों का पर्दा हटा रहे हैं कि अपनी आंखों से ये पत्थर अपने निकालिए। बताइए, जातवाद के नाम पर बड़ी बड़ी सरकारें बनती हैं ना, सब मसीहा बनते हैं ना, हैं? लेकिन आज हम अगर मुलायम सिंह से और मायावती से या जितनी पार्टियां हैं, हम उनसे पूछें कि क्यों सरकार, कभी आपने आज आप भाई मुलायम सिंह प्राइमरी स्कूल के टीचर तो रहे हैं, ठीक? उनसे पूछा जाए महाराज, कभी सड़े घाव वाले गधे की पीड़ा को आपने समझा? कभी उसको अपने घर लेके आए? कभी आपने स्वीपर जो मेहतर सफाई कर्मी होता है, क्या उसके घर में बिना लालच, बिना उसके स्वार्थ के आपने क्या रोटी खाई है? नहीं खाई है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम जो स्वीपर मेहतर है, मैं फतेहपुर गया, 5 कंबल मैंने उसको दिए, हमको बांटने के लिए उन्नाव से मिला था, 5 कंबल दिए। अब वो संकोच कर रहा था कि हमसे कैसे कहे। हमने कहा क्यों भैया, तुम हाथे दोनों मल रहे हो, तुम कुछ कहना चाह रहे हो ना? हाँ बाबा जी, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। हम कहा तुम यही कहना चाह रहे हो कि महाराज कुछ ग्रहण कर लीजिए, यही कह रहे? अरे हाँ हाँ महाराज, जहाँ। तो हम कहा ऐसा करो, मेरे लिए पेड़ा, लड्डू, बर्फी